Hello. Well, welcome you all. I am Dr. Deepak Rathi from NAHEP, Nodal Officer, Equity Action Plan, the project which is running
under our university and which is funded by ICR, Indian Council of Agriculture Research, and World Bank. So I hereby welcome all of you. We were just waiting for the participants to join, but since last 15 minutes we have been waiting for them. But the registrations which we have is more than 100 or more than 150, I think. But in class, I am seeing that only 28 or 27 or 20, around 25 students are present. So I just make a call to our PI, and then after his inaugural address, we will start the session. So all the participants and respected teacher from STRIDE, Dr. Prashant Dubey ji, just wait for 5 minutes. I am just making a call to him. ये मीटिंग
Well, good morning, all of you. I just made a call to our PI, and it seems that he's busy somewhere, and he was not able to pick a call. So now I am Dr. Deepak Rathi, Nodal Officer, Equity Action Plan under ICR NIAP World Bank funded project, and the title of the project, which is under the Center of Advanced Agricultural Science and Technology, that is CAST, and which is under this National Agriculture Higher Education Project. And the title which we have is Skill Development to Use Spatial Data for Natural Resources Management in Agriculture. So this project which we are having, and this project is running from March 2019, and due to COVID, most of the time we have organized various training programs through online mode only. And the objective of this project is to build basic capacity for using remote sensing and geographical information system techniques applied for betterment of natural resource management, particularly in agriculture and rice sector, to identify appropriate techniques for integration of spatial and ground data to realize problems related to land, water, and vegetation, to develop user-friendly spatial data products using identified technologies for policymakers, researchers, field workers, and farmers. So this is the project in nutshell, and the total outlay of the project is around 1,913 lakhs, and it is for the 3 years. So I once again welcome you all in this training program where it is mandatory to organize training for improving language competency through capacity building in spoken English and writing skills. And we are very lucky to have the main major center, a good center, which is established in the year 1984. That is a Stride Center for Youth Empowerment, Jabalpur. So this we had requested Mr. Prashant Dubeji, who is a squadron leader and director of this institute. I think Prashant ji is here. Dubey sir, am I audible? Hello? Hello? Mr. Prashant Dubey sir is here? Hello? Hello. Hello. Hello, this is Prashant Dubey. Okay, okay. Well, I welcome, sir. Thank you, sir. Thank you. Thanks a lot. Okay. So we are very lucky that we have Mr. Prashant Dubeji, who was a squadron leader and quit his services, taken a voluntary retirement, and is providing his valuable services in the field of capacity building of youth for in English language and in competency in English language, writing, etc. So particularly they are providing the IELTS training also. So youth are getting benefited, and since 1984 this center is here, which is running successfully, and I think we are lucky to have this kind of faculty, and the valuable time which Mr. Prashant Dubeji is sparing for us. So sir, we have a registration of around 150-160 students. They are from BSc Agriculture or BTech Agriculture Engineering, and MSc Agriculture or Tech Agriculture Engineering, as well as of PhD students. So total 160 students registered for this course initially, and now as far as participation, I'm seeing that around 35-40 have already joined this group. So the
this will be for the training from today, that is 22nd November 2021 to 1st December 2021. And for the participants point of view, I just wanted to, during registration, they might have seen the course which Mr. Dubey sir will be completing. That is basic structure of English. And a talk on how English can be learned, what routine one needs to follow. That is a kind of guidance, or tidbits, or you can say at this stage, if one follows, then definitely he will be having command on English in future. So that kind of structure we have designed, that which will help the students in their spoken English and writing skill upgradation or skill development in this area. So the basic structure of English will be completed next day, that is on 23rd. That is parts of speech, sentence structure, syntax, pronouns. This is also very much important. Most of the times, most of the students do this syntax error kind of mistakes, which one should not do. And once a person who wanted to learn this language will be able to understand what kind of syntax error he is doing again and again. So if he improves that particular thing, then only he improves a lot in English language while speaking or while writing the things. And then talking about the present, verb to be, and next 24th November, this will be covered. On 25th, talking about the present, simple present tense, present continuous tense, combined exercises will be there. On 26th, there is a talking about the present, that can and have a verb will be used. And for writing tips, on 27th, you will be having writing tips, that is from writing task explanation. And talking about the future, will and shall, be, going to, these kind of verbs, you will see how the syntax of that kind of verb will be formed, and how this will be used for improving your language knowledge. So, and on 29th, talking about the past, simple past, present perfect, and on 30th, possessive case of nouns, apostrophe, and on 1st December, there will be a closing session, that is question tags. And for students, I just wanted to communicate that your attendance will be monitored by our staff, Mr. Om Prakash ji, and Sumit Kokade, Saurabh Nema, all are there. So they will be monitoring your daily attendance. Those who will attend all the classes, they will only get the certificate. Otherwise, they will not be entitled for that one. So my request to the students who have joined today, that you should be continue on the same time period. We are almost 15 minutes or 20 minutes late. It was supposed to be started from 9:45 to 11:45 session are there. So you can ask any of your queries freely. You are having advantage of we are having the advantage of having most experienced faculty in English language. So I just request students to take the advantage of the guidance of Mr. Prashant Dubey ji. So today the test will be conducted on Testmost. The link will be shared by Mr. Om Prakash Prajapati ji. And then on last day also, during closing session, the one test also will be conducted there also. So I leave this floor to and request Mr. Prashant Dubey ji for his training program to start. Thank you, Prashant sir. Thank you, Dr. Rathi. Thank you, Dr. Rathi. I just want to know that should I keep the video also on, or should I only continue with the audio? I think if you keep video on, that it seems it will be a kind of interactive session will be there. And may I request all those who can keep their videos on also to keep their on, so that we can have a little more
interactive kind of a session. And sir, I just want to know what should be the medium of teaching. Should I teach in Hindi, English mix, or Hindi or English? What is? It's up to you, sir. In what way they will be able to understand the thing in Okay. a proper So manner. since I was nice. told that students are from different parts and maybe with the background of Hindi, so I'll use more of Hindi in my teaching, sir, if you may allow. In what way the class is comfortable and you yourself are comfortable, that will be nice, sir. Sure, you are the best just to judge this, actually. Thank you, sir. Thanks a lot. Okay. Thank you, sir. Please. Yeah. It is open to you for. So welcome everybody. आप सबका स्वागत है इस session में. Dr. Rathi had definitely talked about this entire session. And जब हमने ये session plan किया था, तो हमारा idea था कि हम कुछ एक ऐसा session शुरू करें जो बहुत ही fundamental से शुरू करें, because ऐसे tidbits में आप लोगों ने भी कई जगह अंग्रेजी पढ़ने का प्रयास किया होगा या कुछ बुक से पिकअप करने की कोशिश की होगी, और जनरली बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो क्लियर नहीं होते हैं और उसमें कुछ ना कुछ रह जाता है और वो गलतियां होती हैं. तो हमारा पूरा आइडिया था कि हम इस सेशन को इस तरह से डिज़ाइन करें जिससे कि हमारे जो बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स होते हैं या डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो पाएँ. सो विद दिस आइडिया आई एम मूविंग ऑन. और ये एक इंटरैक्टिव क्लास है, तो आप सबका स्वागत है. अगर आपको बीच में कुछ पूछना है, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली मेरे से पूछ सकते हैं. जो मुझे आता है वो मैं आपको बता दूंगा. अगर नहीं आता है, आई विल डेफिनेटली फाइंड आउट एंड लेट यू नो. Okay. So once again, I'm, as Sarat said, I'm Squadron Leader Prashant Dubey. I've taken voluntary retirement from the Air Force after serving for almost 12 years. And since then, I've been into teaching. Okay. So English, whole idea and ये जो 10 दिन का सेशन है, ये इंग्लिश लैंग्वेज के लिए है. सो मैं पहले चाहता हूँ कि कुछ अगर इंटरैक्टिव हो पाए, अगर आप लोग कुछ जवाब देना चाहें तो आपका स्वागत है. मेरे क्वेश्चंस हैं. पहले तो हम जानते हैं कि इंग्लिश एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है या एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है. जैसे जैसे आप अपने फील्ड ऑफ वर्क में आप आगे बढ़ेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि इंग्लिश आपको हर जगह आपकी एक नीड होगी. सो इसको ध्यान में रखते हुए हमारे लिए एक इम्पेरेटिव हो जाता है या बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इंग्लिश को सीखें. साथ में ही इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो हम बचपन से अपने आसपास देख रहे हैं, और भले शायद स्कूल में हमारा मीडियम कुछ भी रहा हो, लेकिन इंग्लिश हमारे सामने शुरू से ही है, फ्रॉम आवर चाइल्डहुड. लेकिन ऐसा क्यों हो जाता है कि हम उसको सीख नहीं पाते हैं? हम जानते हैं, इस भाषा को सीखते भी हैं, और ऐसा नहीं है कि ये आप बिल्कुल अनजान हैं. आप बहुत सारे शब्दों को जानते हैं. आपको अगर कोई आपसे इंग्लिश में बात करता है तो आप समझ भी जाते हैं. लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम इस भाषा में उतने प्रोफिशिएंट नहीं हो पाते हैं जितना हमें होना चाहिए और जितना हमें हमारे करियर प्रोग्रेशन के लिए आवश्यक है. सो मेरा एक दो सवाल हैं. अगर आप लोग में से कोई जवाब देना चाहें तो आपका स्वागत है. पहला सवाल ये है कि इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन हम इंग्लिश क्यों नहीं सीख पाते हैं? ऐसा क्या है, क्या चीज़ या क्या कमी है जिसके कारण हम इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं? कुछ पॉइंट्स मैंने भी लिखे हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन अगर आप में से कोई बता सकते हैं कि क्या कारण है कि हम इंग्लिश सीख नहीं पाते हैं, तो आपका स्वागत है, बताएं. Anybody who would like to give an answer? Sir, it is due to the lack of practice. Okay, definitely it is due to lack of practice. I appreciate that. Anybody else? So we are not at the environment or surrounding where Yes, we are used to practice of this. If somebody is talking or if somebody is speaking, that their friend circle or the friend or family member are saying that what from where are you, or they are laughing at them and they are Okay. not familiar and they are not supporting to them. Okay, got it. So basic primary point. Who is saying this? Very nice point. So this side Rupali Koshi from College of Horticulture Chhindwara. Okay, Rupali, very good. Your point is absolutely correct. We somehow feel that we don't have the atmosphere, है ना? वो हमें माहौल नहीं मिलता है जो कि हमको
हेल्प करे इंग्लिश सीखने के लिए? इसके अलावा भी कुछ और रीजन हो सकते हैं? Sir, lack of confidence is another most important reason. Lack of confidence. Okay, Rupali, good. That's also. Anybody else who would like to say a few points? Yes, sir, we are not native, that's why. We are not native. Okay. So it is our second language, isn't it? Okay. So we are not native to English. Okay. Then, Sir, from our childhood, we are mainly focused on the writing skills, not speaking, from school, colleges, and everything. So we don't have that involvement to yes, speak yes, English yes. everywhere. Absolutely right. So हम हो सकता है कि शायद हम में से बहुत सारे लोग इंग्लिश मीडियम से भी रहे हों, तो हमारा मेनली फोकस रहता है कि हम लिखने पे फोकस करें, बट स्पीकिंग इज जनरली लेफ्ट बिहाइंड, है ना, उसमें हमारा ज़्यादा फोकस नहीं रहता. ओके, वेरी गुड. सो आई अप्रिशिएट कि आप में से कुछ लोग आंसर दे रहे हैं, और प्लीज़ हेजिटेट मत कीजिए, लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है, आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि मैं चाहता हूं कि ये सेशन में, देखिए 10 दिन में मैं आपको कम्प्लीटली इंग्लिश तो प्रोफिशिएंट नहीं बना सकता, लेकिन अगर एक प्रोसेस अगर शुरू हो जाए आपकी, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप फिर इस भाषा को जल्दी सीख लेंगे, एंड देन दिस विल बिकम अ वेरी contributing factor to your success and your progress. So anybody else who would like to say anything? कि हम क्यों नहीं सीख पाते? तो कुछ चीज़ें जो पॉइंट्स आई हैं, जिसमें कि एटमॉस्फेयर एक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है. कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर नहीं है, लोग हमको एनकरेज नहीं करते और शायद हमको वो मौके नहीं मिल पाते. दूसरा कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है. ओके, एनीबडी एल्स? और कोई कुछ कहना चाहता है? देखिए, समझना ज़रूरी होगा कि हम क्यों नहीं सीख पाते हैं, हमें क्या चीज़ रोकती है. एक बार हम समझ जाएंगे कि प्रॉब्लम क्या है, सिंस यू आर ऑल साइंटिस्ट and you're going to get into a technical stream. So once you understand what the problem is, you can definitely find a cure for that. Okay. So if anybody else who would like to add something? Nobody. देखिए, मैंने कहा ना, हिंदी हिंदी में बात कर सकते हैं हम लोग, इंग्लिश कोई बैरियर नहीं है. Sir, vocabulary. हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड. ये मैं चाहता था कि कोई ये पॉइंट दे. किसने कहा ये? Sir, Niyanta. Okay, Niyanta. Niyanta? Okay, very good. So vocabulary is very, very important point. Very good. I appreciate that. So lack of vocabulary is one reason why we cannot speak well. Absolutely. Vocabulary मतलब हमारे पास शब्द होने चाहिए सही भाषा के. Okay. So well, काफ़ी लोगों ने दिया. Anybody else who wants to say something? Otherwise, I'll continue. तो देखते हैं कि कुछ लोगों ने मुझे बताया कारण कि हम इंग्लिश क्यों नहीं सीख पाते हैं. इंस्पाइट की ये भाषा हमारे चारों तरफ है, बचपन से है. हर चीज़, हर रैपर, हर बोर्ड, साइन बोर्ड, यहाँ वहाँ चारों तरफ आप देखिए तो इंग्लिश ही आपको दिखेगी. ओके, सो कुछ कारण मैंने भी लिखे हुए हैं, तो मैं पहले बताना चाहता हूँ कि वो क्या कारण है जिसके कारण हम इंग्लिश नहीं सीख पाते, और फिर हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हम एक रूटीन बना पाएँ अपने लाइफ में और उसमें हम इंग्लिश सीख पाएँ. लेकिन उससे पहले मुझे एक सवाल आपसे पूछना है कि हम सब जानते हैं कि इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है. आई थिंक वी ऑल, अगर हम इस सेशन में आए हैं, इसका मतलब है कि हमने वॉलंटरीली रजिस्टर किया है, इसका मतलब है कि हम जानते हैं इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है. तो आप में से कितने लोग इंग्लिश को मतलब प्यार करते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू लव दिस लैंग्वेज? Do you love this language? I wish to know how many of you love this language. Do you love this language, English? Yes, sir. Yes. Okay, everybody. Okay, अगर आप बोल नहीं सकते तो you can just send thumbs up or whatever, sign that you can do, so that I know that yes, you are with me. Okay, great. So Manish has just done that. So you love this language, है ना? So मेरा ये सवाल है, दूसरा सवाल है, और मैं चाहता हूँ कि इसको आप लोग को ऑनेस्टली मुझे बताना होगा कि अगर आप कहते हैं कि आप इस भाषा को प्यार करते हैं, तो दूसरा सवाल ये है कि अगर हम किसी चीज़ को या किसी को प्यार करते हैं तो हम उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करते हैं. तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप लोग
इंग्लिश के साथ रोज कितना वक्त बिताते हैं उसको सीखने या उसको उस लैंग्वेज को मास्टर करने के पर्पस से. Now I wish to know how much time do you spend with English? Sir, Anybody it's who not so frequent that I used to practice daily or any specific routine, but within an hour or 15 minutes, 10 minutes, as I speak or I want to listen something, then I start practicing that thing. So 15 minutes maybe, and that is also not very regular. Am I right? Yes, sir. It's not frequent way that sometime I take long hours with that, but if I am busy or I have another course schedule, so I have to cut out that time to complete my syllabus and other things. Okay, so what about others? बाकी लोग ये तो जैसे I don't know who was talking. I think was it Rupali? Yes, sir, it's Pali. Okay, Rupali. So you spend around 14-15 minutes, but that's also not very regularly. और लोग कोई और भी हैं जो इंग्लिश पे रेगुलरली या नहीं करते. बेसिकली जस्ट वांट टू नो कि नहीं कुछ नहीं करते हैं रेगुलरली, तो कुछ नहीं करते हैं, कुछ भी सिस्टमैटिक नहीं है. कभी इच्छा हुई तो कुछ सीख लिया, थोड़ा पढ़ लिया और Hello, हाँ sir. लेकिन हाँ Sir, जी. for me, it's like whenever I see a new word in a newspaper or something like a new thing, I just Google it and search it meaning and write it down in my copy. And after some time, I forgot to revise it, and then I Yes, yes. totally lost that thing. Okay, so you do something, but then after some time you forget these words, and these words don't become a part of your language. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. That's correct. And who is this who spoke? It's Uday. Okay, Uday. है ना? So very good. Anybody else? और आप लोग कितना बाकी लोग हैं जो कुछ समय बिताते हैं या नहीं बिताते? अगर नहीं बिताते तो बता दीजिए कि अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि हम तो आज के बाद की बात कर रहे हैं. मैं जस्ट जानना चाहता हूँ कि हम में से कुछ कोई रेगुलरली इंग्लिश सीखने का प्रयास कर रहा है या नहीं कर रहा है. ओके, so well, I don't seem to be getting any answer. तो चलेगा. खैर, हालांकि ये कम्युनिकेशन का सेशन है तो थोड़ा कम्युनिकेट कर सकते हैं हम लोग वैसे, है ना. सो द आइडिया इज टू कम्युनिकेट, बट चलिए कोई बात नहीं. सो मुझे पूरा विश्वास है, मैं जानता हूँ कि क्योंकि मेरा भी अनुभव हो गया है, काफ़ी समय से मैं इंग्लिश पढ़ाता आया हूँ, है ना. सो मैं जानता हूँ कि हम लोग बहुत रेगुलर नहीं हैं. इज समबडी सेइंग समथिंग? ओके, तभी आप कुछ कह रहे हैं क्या? नो सर, ऐसा कुछ नहीं, बट इस लैंग्वेज के साथ हम लोग ज्यादा जुड़े नहीं रहते हैं. अगर इसमें वक्त अपना दें डेली बेसिस 2.5 घंटा कम से कम, तो इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा होगा. और Exactly. होता सही कह रहे हैं आप, हम कभी देते नहीं हैं. और दूसरी चीज कि ऐसा नहीं है कि कुछ लोग चाहते नहीं. ये पीछे से कुछ आवाज आ रही है, इज समबडी टॉकिंग और आई एम जस्ट हियरिंग सम काइंड ऑफ अ डिस्टर्बेंस. ओके, सो मेरा ये कहना है कि इम्प्रूवमेंट होगा. कभी पेपर लेके बैठते, कभी गूगल करते हैं, जी हाँ, बट वो होता क्या कि वो कैप्स जितनी अच्छी स्ट्रांग होगी, लैंग्वेज हमारी उतनी बेस्ट होगी. जी हाँ, वो कैप समझ- होती है, अगर वो कैप हो जाए तो ओके, काफी अच्छा बोलने होगा. अगर exactly. लैंग्वेज को उठा के देखा जाए, एग्जांपल के तौर पे हिंदी होता क्या है, हमारे पास ज्यादा वर्ड्स है. वर्ड्स होने की वजह से हम अच्छा से बोल पाते हैं. हाँ हाँ, अगर ये हम लोग हमारे को ये हाँ इंग्लिश में भी कैप्स होंगे, एक्सक्यूज मी, हाँ तभी से ये हम लोग को पॉइंट मिल चुका है कि वोकैबुलरी की कमी के कारण हम बोल नहीं पाते हैं, है ना. सो मेरा ये कहना है कि हम लोग कहते ज़रूर हैं कि हम इंग्लिश को पसंद करते हैं, इंग्लिश हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और इनफैक्ट आप लोग ने कहा कि आप तो इंग्लिश को प्यार भी करते हैं, लेकिन ऑनेस्टली हम लोग उसके साथ उतना समय नहीं निकालते हैं. और चूंकि हम उसके साथ समय नहीं बिताते हैं, इंग्लिश हमारे लिए बड़ी डिफ़िकल्ट सी हो जाती है. और सिर्फ वो एक ऐसी भाषा है जिसको हम इच्छा तो रखते हैं कि ये हम इसमें प्रोफिशिएंट हो जाएं, लेकिन ऐसा कोई एफर्ट नहीं होता. तो आज के सेशन में, चूंकि ये हमारा ओपनिंग सेशन है, मेरा आइडिया ये है कि पहले तो मैं कुछ डिफ़िकल्टीज जो हम एक्सपीरियंस करते हैं इंग्लिश सीखने में, उनके बारे में थोड़े से कुछ बातें करें. और फिर मैं चाहता हूं कि मैं एक आपका ऐसा रूटीन तय हो, एक ऐसा रूटीन सेट हो जिससे कि आप रेगुलर
ऑन अ डेली बेसिस आप इंग्लिश को अपनी भाषा में लेके आ पाएँ, जिससे कि आप इस भाषा में प्रोफिशिएंट बन पाएँ। चाहे किसी सेशन की हेल्प से या खुद अगर आप सेल्फ लर्निंग भी करना चाहें, तो एटलीस्ट आपके पास एक प्रोसेस हो जिसको अगर आप करना शुरू कर देंगे, तो आई एम प्रिटी श्योर कि आप बहुत जल्दी इंग्लिश भाषा में एफिशिएंट हो जाएंगे। सो चलिए देखते हैं कि पहले मुझे लगता है कि क्या-क्या कॉमन कारण है जिसके कारण हम इंग्लिश नहीं सीख पाते। तो उसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट कारण है वो है कि एक इंग्लिश का एक अजीब सा डर मैंने देखा है स्टूडेंट्स के मन में रहता है कि एक बहुत भयंकर हेजिटेशन रहता है कि जिनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती भी है वो हेजिटेट करते रहते हैं बात करने में। ओके, somebody has said कि प्लीज टॉक इन इंग्लिश, बट मुझे लगता है कि मिक्स क्राउड है, सो आई विल यूज इंग्लिश एंड हिंदी, सो प्लीज बेयर विथ मी। ओके, सो एक हेजिटेशन रहता है इंग्लिश का, और चूंकि ये हेजिटेशन इतना स्ट्रांग रहता है और ये हेजिटेशन रहने का कारण ये है कि हम श्योर नहीं हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं है। सो चूंकि हमें पता है कि थोड़ी इंग्लिश तो आती है, हम बोल सकते हैं, बट वी आर नॉट श्योर, तो वो हेजिटेशन है कि कहीं हम कुछ गलत ना निकल जाएं और लोग हमारे बारे में क्या ओपिनियन बनाएंगे या लोग क्या सोचेंगे कि इसको इंग्लिश नहीं आती है। सो एक अजीब तरह का डर जो मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, पर्टिकुलरली जो किसी दूसरे मीडियम से आते हैं जिनका मीडियम इंग्लिश ना हो, उनके अंदर रहता है। देन एक पॉइंट दिया था कि हमारे पास एटमॉस्फेयर नहीं होता। अब ये एक ऐसी प्रॉब्लम है कि अगर हम कहते हैं कि चूँकि ये बात भी लॉजिकल लगती है, हम अपनी मातृभाषा को अपने एटमॉस्फेयर से सीख जाते हैं। हम अपनी मातृभाषा को सीखने के लिए किसी सेशन को ज्वाइन नहीं करते या किसी क्लास को ज्वाइन नहीं करते हैं। धीरे-धीरे चूँकि वो भाषा हमारे आस-पास रहती है, लोग हमको करेक्ट करते जाते हैं, तो हम इस भाषा को सीखते जाते हैं। लेकिन इंग्लिश के साथ तो ऐसा नहीं है, चूँकि हम सब हमारी सबकी मातृभाषा हो सकता है कि कुछ और हो और इंग्लिश हमारे लिए एक सेकंड लैंग्वेज हो। तो इंग्लिश सीखने का हमको वो कभी माहौल मिल नहीं पाता है। अब समस्या ये है कि माहौल मिल नहीं पाता है, ये तो एक फैक्ट है, और शायद आगे भी नहीं मिलेगा, ये भी एक फैक्ट ही रहेगा कि आपको इंग्लिश का माहौल नहीं मिलेगा। तो क्या अगर आपको इंग्लिश का माहौल नहीं मिलेगा, तो आप इंग्लिश बोलना या इंग्लिश सीखना बंद कर देंगे? ये तो संभव नहीं है। विल हैव टू कंटिन्यू लर्निंग, क्योंकि ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है और हर स्टेज में हमको आज नहीं तो कल पकड़ लेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगेगा कि हमें इसकी आवश्यकता पड़ रही है। सो हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हम वो एटमॉस्फेयर क्रिएट कर पाएँ? तो कई बार जब मैं अपने स्टूडेंट से डिस्कस करता हूँ, तो मेरे मन में आता है कि भाई माहौल का मतलब ये है कि आपके आसपास के सारे लोग अंग्रेजी बोलने लगें। अब ये तो संभव लगता नहीं है, मतलब अगर माहौल बनाना है तो इसका मतलब है कि हमारे घर के माता-पिता वो भी अंग्रेजी बोलें, हमारे दादा-दादी या जितने भी और भी बुजुर्ग हैं वो भी अंग्रेजी बोलने लगें। हमारे घर में जो मेड आती है, दूध वाला आता है, सब्जी वाला आता है, वो सब अंग्रेजी बोलने लगें। तो ये सारे लोग जब अंग्रेजी बोलने लगेंगे, तो हमारे पास बहुत अच्छा माहौल आ जाएगा, एटमॉस्फेयर आ जाएगा और शायद हम इंग्लिश बोलने लगेंगे। लेकिन ऑनेस्टली बताइए, क्या ये संभव है? इज़ इट पॉसिबल? क्या ऐसा संभव हो पाएगा कि आपके चारों तरफ के लोग अंग्रेजी बोलने लगें, तो आप भी इंग्लिश बोलने लगेंगे? सो वेल फ्रेंड्स, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये आपके लिए संभव नहीं हो पाएगा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? ओके, सो लेट्स सी कि हमें क्या करना चाहिए कि हम अपना माहौल या हमारा जो एटमॉस्फेयर है हम ये खुद बना पाएँ, और उसके लिए हमको कुछ एक रूटीन फॉलो करना होगा। दूसरा, लैक ऑफ वोकैबुलरी, जैसा कि तबीश जी ने भी कहा और आई बिलीव इसके पहले 1 और 2 स्टूडेंट हैज आल्सो सेड कि लैक ऑफ वोकैबुलरी, वोकैबुलरी मतलब शब्द। अगर हमारे पास शब्द नहीं है तो हम इंग्लिश बोलेंगे कैसे? अच्छा, आई एम प्रीटी श्योर आप लोग सब कॉलेज में हैं एंड यू ऑल आर डूइंग योर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पीएचडी। तो ऐसा नहीं है कि हम सब जानते नहीं हैं कि ये शब्द इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, और ऐसा भी नहीं है कि कभी ना कभी हमने इन शब्दों को जानने की कोशिश या सीखने की कोशिश ना की हो, और कभी कभी ऐड करने की भी कोशिश की। जैसे अभी मुझे somebody was telling me कि हम बीच में मतलब नए वर्ड्स जब भी कोई आते हैं तो मैं उसको लिख लेता हूँ और फिर उसको उसका मीनिंग चेक करता हूँ, लेकिन उसके बाद वो वर्ड हमारी भाषा का हिस्सा नहीं होता। सो वोकैबुलरी जो है, उसके साथ मैंने देखा है कि बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स जो अपनी वोकैबुलरी ठीक करना चाहते हैं, वो बड़े एक्साइटेड होके एक दिन डिसाइड करते हैं कि आज से अपनी वोकैबुलरी ठीक करनी है। तो वो बैठ के 10-15 वर्ड, नए-नए वर्ड सीख लेते हैं एक ही दिन में। बहुत सारे वर्ड्स ढूँढ के उसका मीनिंग चेक कर लेते हैं।
लेकिन बिलीव मी फ्रेंड्स, 10-15 दिन के बाद उनको उनमें से कोई शब्द याद नहीं रहते हैं, और वो शब्द सिर्फ उनको ये याद रहता है कि ये शब्द मैंने कहीं देखा है, ये तो मैंने कहीं चेक किया था, लेकिन इसका मीनिंग क्या है वो याद नहीं रहता, और अगर मीनिंग शायद याद भी रहे तो उसको यूज़ कैसे करना है वो याद नहीं रहता। सो आई होप व्हाट आई एम सेइंग इज़ राइट। इफ़ यू फील कि मैं जो कह रहा हूँ तो यू कैन मे बी से यस और थम्स अप। Yes, आई जस्ट वांट टू नो कि Yes. आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं। completely agree. Completely, isn't it? So I've seen a lot of people struggling with vocabulary, and मैंने ये भी नोटिस किया है कि vocabulary एक ऐसी चीज़ है जो रातों रात ठीक नहीं हो पाती। You know, it takes consistent efforts to see that your vocabulary grows. तो अगर आप 10-15 वर्ड एक दिन में सीख भी लें और कुछ दिन अगर आप ये प्रयास भी कर लें, तब भी आपकी भाषा का जो लेवल है वही बना रहेगा, आपकी भाषा में वो वर्ड्स बनते नहीं हैं। तो मुझे आपसे एक सवाल पूछना है कि when was the last time you added a new word to your vocabulary? पिछली बार वो कौन सा समय था या कब था, कितना समय पहले था, या कितनी फ्रीक्वेंटली था जब आपने अपनी भाषा में एक नया शब्द ऐड किया और वो शब्द अब आपकी भाषा का हिस्सा है और अब आप उसको बोलने में या लिखने में यूज़ करते हैं? बताइए, पिछली बार कब किया? एनीबडी? So frequently किसी को याद भी नहीं होगा, मुझे खुद भी याद नहीं है कि मैंने लास्ट टाइम कब ऐसा कुछ नया वर्ड ऐड किया था। तो प्रैक्टिस कर लेते हैं बेसिकली कि हमने प्रैक्टिस कर ली, हमने कुछ नया सीख लिया, हमने याद कर लिया, हमने लेसन्स ले लिए, लेकिन हमको वो याद रखना, फ्रीक्वेंटली कुछ नया ऐड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एग्री है ना। और मतलब बेसिकली आपका ये कहना है कि मे बी एज अ रूटीन आप कर लेते होंगे, लेकिन कॉन्शियसली आपने कुछ नहीं किया, कोई नया वर्ड कॉन्शियसली ऐड किया हो कि इसको आई हैव टू हैव दिस एज पार्ट ऑफ माई वोकेबलरी। और बाकियों का क्या सोचना है इसके बारे में? कब किया आपने कोई नया शब्द अपनी भाषा में ऐड, कुछ एडिशन किया हो, और वो वर्ड आपकी भाषा का हिस्सा भी होना चाहिए। यानी तो वो कैब में जब हम कभी वर्ड्स ऐड करते हैं ना, तो बेसिकली तभी होता है जब हम कोई सेशन ऐड कर रहे हो या कोई सेशन हो, क्लासेस हो, तभी हम ऐड करते हैं, और वो हम याद कर लेते हैं, कहीं नोट डाउन कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं होता कि हम फ्रीक्वेंट यूज करें। एग्जैक्टली, वेरी गुड, वेरी गुड। सो दिस वाज रूपाली टॉकिंग? Yes sir, this was Rupali. Okay, Rupali, great. So you're just nailing it on the head. So very good. You're right कि हम लोग याद तो कर लेते हैं कभी कभी, ऐसे ही अगर हम कोई सेशन वगैरह कर रहे हो तो कोई शब्द आता है तो हम उसको ऐड करते हैं, लेकिन बहुत कुछ सिस्टमैटिक एफर्ट नहीं है, और हो सकता है कि कुछ समय के बाद वो वर्ड हम भूल भी जाते हों, और जब अगली बार आता है तो हमको लगता है कि इसे कहीं हमने देखा तो है, लेकिन वो स्टिल हमारी भाषा का पार्ट नहीं है। एम आई राइट? एम आई राइट हियर इन अंडरस्टैंडिंग दिस? ओके। सो मुझे लगता है कि Yes, ये sir. सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें बताती हैं कि हमारी इंग्लिश में कुछ चेंजेस क्यों नहीं आते। फिर तीसरा एक और मुझे क्या लगता है कि हमारी इंग्लिश के साथ ना पहचान भी नहीं बनी, मतलब जान पहचान भी नहीं बनी। प्यार करना और लव करना तो बहुत दूर की बातें हैं। आप लोगों में से कुछ ने कहा कि आप इंग्लिश को प्यार करते हैं, यू लाइक दैट लैंग्वेज। तो मैं बताता हूँ कि आप इनफैक्ट इंग्लिश को प्यार करना तो बहुत दूर की बात, आप इंग्लिश का लगातार तिरस्कार और इंसल्ट करते हैं। आप में से कुछ सोचेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, तो लेट मी आस्क यू सर्टेन क्वेश्चंस, है ना। अब मुझे आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं तो मैं अस्यूम कर लूँगा जो मुझे जवाब चाहिए है, या मैं जो सोचता हूँ सही है, और अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बता सकते हैं आपका कि नहीं ये जवाब आप जो सोच रहे हैं ये गलत है। तो वेल, जैसा कि मैंने कहा कि ये गलत है कि आप इंग्लिश को बहुत प्यार करते हैं और यू वैल्यू इट अलॉट, क्योंकि आप उसके साथ लगातार बहुत ही स्टेप मदर ट्रीटमेंट करते हैं। तो कुछ सवाल पूछता हूँ, आप मुझे बताइए इफ़ यू कैन आंसर, कि अगर आपके सामने हिंदी का कोई न्यूज़पेपर पड़ा है, दैनिक भास्कर या जो भी है, और आपके सामने एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर है, तो ऑनेस्टली बताइए कि आप पहले किस पेपर को उठाएंगे? Sir, for my Sir, side, सबसे I will choose English. Okay, but what about others? You are not the entire crowd, Rupali, so I wish to know from others.
हाँ जी, I will Probably choose I choose English, Hindi because I'm not because comfortable of in that Hindi ये क्या compared बोलते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, बट बिकॉज ऑफ कि मेरी वोकेबलरी अच्छी हो, इस कारण से मैं इंग्लिश को चूज करूंगा। बट यदि मुझे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए रहेगी तो मैं हिंदी को ज्यादा चूज करने की कोशिश करूंगा। नहीं, मैं तो इंस्टिंक्टली बात कर रहा हूँ। देखिए, किसी पर्पस के लिए तो हम रोज न्यूज़पेपर नहीं उठाते हैं ना, इंस्टिंक्टिवली। कि अगर मेरे पास सामने हिंदी और इंग्लिश का न्यूज़पेपर है तो मैं, कोई पर्पस है तो चलो वो मैं उठा लेता हूँ, लेकिन इंस्टिंक्टिवली हम कौन सा न्यूज़पेपर उठाते हैं, जो हमारी मातृभाषा का है या जो इंग्लिश है, ये बताइए Sir, मुझे। Sir, Hindi. हिंदी ना sir, भाई? sir, Yes. because we are not comfortable in Hindi हिंदी, comparative ओके। to English because हाँ, तो मेरा ये कहना है कि इंस्टिंक्टिवली हम हिंदी उठाते हैं बिकॉज हम उसमें बहुत कंफर्टेबल हैं। और इंग्लिश, जैसा कि रूपाली ने कहा, एंड हु एल्स वाज टेलिंग, कि उदय ने कहा शायद ना, कि वोकैबलरी के लिए, तो मैं, उदय, वाज इट यू? यस इट्स मी। ओके, सो उन्होंने कहा कि हम वोकैबलरी के, लेकिन इंस्टिंक्टिवली हम हिंदी ही उठाते हैं, है ना? तो देखिए, आप कहते ज़रूर हैं कि इंग्लिश को प्यार करते हैं, बट इंस्टिंक्टिवली यहाँ पे आपने हिंदी उठाया और इंग्लिश का तिरस्कार किया। तो मैं आपको बस एक पॉइंट प्रूव करना चाहता हूँ कि हम कहते ज़रूर हैं कि हम इंग्लिश को प्यार करते हैं, बट वी कॉन्स्टेंटली निग्लेक्ट इट। दूसरा सवाल, मान लीजिए आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल है और एक में कॉमेडी नाइट्स विद कपिल आ रहा है और एक में इंग्लिश प्रोग्राम आ रहा है, तो आप क्या देखना शुरू कर देंगे? कहाँ चले जाएंगे? sir we will go Comedy for nights with Kapil. Kapil. Somebody is saying something, Sir, लेकिन I उनकी आवाज़ tried क्लियर some नहीं आ रही है। हाँ, सो जनरली देखिए, मैं तो क्राउड की बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल कैन डू समथिंग डिफरेंट, बट जनरली हम क्या उठा लेंगे? हम मेरे ख्याल से कॉमेडी नाइट्स देखने लगेंगे। सॉरी, क्योंकि वो हम उस भाषा में बड़े कंफर्टेबल हैं। सो वेल, दिस अगेन प्रूव्स कि हम इंग्लिश के साथ कॉन्स्टेंटली हम इंग्लिश को इग्नोर करते हैं और किसी चीज़ और चीज़ को प्रेफर करते हैं। और तीसरा मेरा सवाल है, मान लीजिए आप एक जगह पे हैं, किसी सोशल गैदरिंग में, जहाँ पे एक ग्रुप हिंदी में बात कर रहा है और दूसरा ग्रुप इंग्लिश में बात कर रहा है, तो आप बताइए कि आप सरकते सरकते कहाँ चले जाएंगे, इंग्लिश में या हिंदी में? हिंदी में। हिंदी में ना? ओके, सो देखिए, कॉन्स्टेंटली ये जो भाषा के साथ है ना, ये कांस्टेंट है, आई एम टेलिंग यू, कांस्टेंट है कि हम चाहते ज़रूर हैं कि इंग्लिश सीख लें, लेकिन एक और चीज़ है विच आप में से बहुत सारे लोग मुझे एग्री करेंगे, कि हम ज़रूर चाहते हैं कि हम इंग्लिश में बहुत प्रोफिशिएंट हो जाएं, बहुत एफिशिएंट हो जाएं, लेकिन हम कॉन्स्टेंटली उसको इग्नोर करते हैं, हम कॉन्स्टेंटली उसको अवॉइड करते हैं। हम इंग्लिश बोलना अवॉइड करते हैं, हम इंग्लिश पढ़ना अवॉइड करते हैं, हम इंग्लिश सुनना अवॉइड करते हैं, हर जगह हम इंग्लिश को अवॉइड करते हैं, लेकिन हार्ट ऑफ हार्ट हम चाहते ज़रूर हैं कि ये भाषा हमको आ जाए। ओके, सो डू यू एग्री व्हाट आई एम सेइंग? सम ऑफ यू एग्री विद दिस और नॉट? जो सर मैं मैं कुछ कह रहा हूँ कहना उससे चाहूंगा आप सहमत हैं? yes sir Yes, yes sir sir. I am Yes. Yes, sir. ओके, सर मैं कुछ कहना चाहूंगा। हाँ हाँ बोलिए। सर आप जैसे कह रहे हैं कि हम इंग्लिश से प्यार करते हैं कि नहीं, तो यस हम करते हैं, बट सर रीजन ऐसा है कि जब आप किसी मतलब कुछ दिन पढ़ते हैं आप इंग्लिश को, जैसे आपने कोई रूटीन बनाया 15 दिन तक उसको फॉलो किया, फिर आपने देखा कि यार हमारा इम्प्रूव नहीं हो रही है, हमारी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं हो रही है, फिर आप उसे छोड़ देते हो। ये हाँ। सोचकर कि जैसे आप कहते हैं ना सर, किसी को आप पाने की कोशिश कर रहे हो, पर जब एक वक्त पर आपको ऐसा लग जाता है कि अब मुझे नहीं मिल सकती या फिर ये मेरी नहीं हो सकती, तो सर आप उसे छोड़ देते हो। जस्ट हाँ, लाइक दैट कि हम इंग्लिश के साथ भी ऐसे ही करते हैं कि हम बिल्कुल कोशिश सर। करते हैं। जैसे अभी आपने न्यूज़पेपर का बोला, तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, पर मैं एडिटोरियल डेली पढ़ता हूँ सर इंग्लिश का, पर आप मुझे चूज करने के लिए बोलेंगे तो मैं हिंदी का ही चूज करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है मुझे अच्छे से समझ में वो आएगा सर। ये मुझे लगता लेकिन है। आपको नहीं लगता, इज दिस अनमोल टॉकिंग? कौन बात कर रहा है? यस सर, यस सर। अनमोल, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि बहुत ही मतलब आप कह रहे हैं कि मुझे एडिटोरियल में पढ़ता हूँ क्योंकि उसमें मुझे जानकारी मिल जाती है, लेकिन मैं हिंदी प्रेफर करता हूँ क्योंकि उसको पढ़ने से मेरे को समझ में अच्छा आता है। अनमोल, एम आई राइट? दिस इज़ योर पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट, आपने कहा कि हम कोई भी चीज़ शुरू करते हैं, लेकिन जब हमको उसमें कुछ चेंज होता हुआ नहीं दिखता है तो हम उसमें डिसअपॉइंट हो जाते हैं और उस प्रोसेस को बंद कर देते हैं। दीज आर टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू हैव मेड, अनमोल, एम आई राइट?
Yes, sir. Mainly is disappoint होके हाँ, सो वेरी गुड, वेरी गुड। तो मुझे लगा कि ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बोला अनमोल, एंड इनफैक्ट आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने ये पॉइंट निकाला। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना सकता हूँ इसी पॉइंट से, और आप लोग तो सब एग्रीकल्चरिस्ट एंड एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट बनने वाले हैं, तो यू वुड डेफिनेटली अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। सो इफ़ आई एम अलाउड, मे आई नरेट अ स्मॉल स्टोरी। हो सकता है आपने सुनी भी हो। ये अनमोल का जो पॉइंट है उसको मेरे को करने के लिए कि हम कुछ दिन शुरू करते हैं, लेकिन जब हमको उसमें से कुछ बदलाव दिखता नहीं है या हमें लगता है कि इस प्रोसेस से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो हम उसको छोड़ देते हैं। और ये जो पॉइंट अनमोल जी ने कहा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ वो जो बार बार कुछ ना कुछ सीखना शुरू करते हैं, कुछ दिन बड़े इंटरेस्ट के साथ और एंथुजियाज्म के साथ उसको करते भी हैं, but then after some times everybody gets disappointed and we leave it halfway through, and this is a very important point. So वेल, चूंकि आप लोग मुझे परमिशन नहीं दे रहे हैं, तो मैं ये परमिशन खुद ही ले लेता हूँ कि आपने मुझे परमिट कर दिया है। तो वेल, एक छोटी सी कहानी है, एंड उस कहानी से ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एक बड़ा सा बगीचा था जिसमें एक बंदर था और उसमें एक माली था, और बंदर और माली की बड़ी अच्छी दोस्ती थी। ओके, और वो बंदर रोज़ देखता था कि वो माली बड़े अच्छे से गार्डन को, मतलब पूरा उसको, वो जो भी प्रोसेस है आप तो जानते ही हैं कि गुड़ाई करना और खाद देना और देखभाल करना, और पौधे वगैरह सब अच्छे बढ़ते थे। एक दिन उस माली को कहीं जाना था, तो वो बड़ा दुखी था। तो बंदर ने उससे पूछा कि भाई, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप क्यों इतने दुखी हैं? उसने कहा कि मैं को कहीं जाना है और 1 महीने के लिए बाहर रहना होगा, लेकिन तब मेरे गार्डन को कौन संभालेगा? ये तो सारे पौधे मेरे मर जाएंगे। तो बंदर ने कहा कि कोई बात नहीं, ये मैं कर लूँगा। आप जाइए, मैं तो रोज़ देखता हूँ आपको कि भाई आप कैसे इसको, इनकी देखभाल करते हो। तो माली ने कहा, देखो ध्यान रखना, मेरे पौधे बढ़ते रहने चाहिए, कुछ मरने नहीं चाहिए। एंड देन ही लीव्स। 1 महीने के बाद जब वो बंदर आता, माली लौट के आता है, तो वो देखता है कि वो जो गार्डन है वो पूरा तहस नहस है, सारे पौधे तो मरे हुए हैं। तो वो बड़ा नाराज़ होता है, पूछता है कि तुमने क्या किया? मैं तो तुम्हारे भरोसे छोड़ के गया था। तो उसने कहा कि देखो, आप जो जो करते थे मैं रोज़ करता था उसको। मैं पानी देता था, मैं खाद देता था, सब कुछ करता था। बोला, फिर ये पौधे मर कैसे गए? उसने कहा, क्योंकि ये इसलिए मर गए क्योंकि आपने जाते जाते कहा था कि ये देखते रहना कि ये बढ़ते रहें। तो मैं रोज़ निकाल के देखता था कि ये बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, इनकी जड़ें आ रही हैं कि नहीं आ रही। यू नो, सो ये हमारी एक कॉमन टेंडेंसी है। आप लोग तो एग्रीकल्चरिस्ट हैं। एक किसान जब बीज को एक जमीन में डालता है, तो पूरे विश्वास के साथ वो उसकी देखभाल करता है, क्योंकि उसको इस लॉ का पता है कि अगर मैं बीज को ज़मीन में डालूंगा और जिस तरह से मुझे उसकी देखभाल करनी है मैं करूंगा, तो इससे पौधा निकलेगा ही। वो रोज उसको खुरच खुरच के या नोच के देखता नहीं है कि कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम, एंड आई एम वेरी थैंकफुल दैट अनमोल जी ने ये पॉइंट निकाला, कि हमें इस लॉ ऑफ कर्मा या लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट पे भरोसा नहीं है। हम पढ़ते जरूर हैं कि एवरी लॉ हैज़ एन एक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, और कर्म का फल होता है, या कॉज का इफेक्ट है, और इफेक्ट है तो कॉज होगा ही। हम भूल जाते हैं ये सब चीज़ें। हम कुछ दिन किसी एक्शन को करना शुरू करते हैं, कुछ समय के बाद हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली एनालाइज करते हैं कि हम में कुछ चेंज आ रहे हैं कि नहीं, और हम भूल जाते हैं कि अगर क्रिया या अगर एक्शन सही दिशा में है तो चेंज तो पॉजिटिव आएगा ही। So I hope I have conveyed a very important point which Anmol ji raised, कि सबसे पहले तो ये फेथ लाना होगा। और I cannot understand that you being agricultural scientist don't have faith in the law of karma and cause and effect. हमें पता है कि अगर हम बीज डाल रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, तो पौधा निकलेगा ही। एंड दिस इज द ट्रस्ट दैट वी नीड टू हैव ऑन एक्शन, कि अगर आज जो भी मैं आपको बताऊंगा, अगर आप ये करेंगे, कंसिस्टेंटली करेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वन डे you will all speak very fluently, very eloquently and efficiently. So this I'm completely in agreement, and I have complete faith in this process. So I hope I have been able to convey this point. Okay. And second चीज, अनमोल आपने एक चीज और कही थी मुझे कि
आपने कहा था कि लॉ हम भूल जाते हैं क्या करना है ना, और हमको समझ में नहीं आता। आपने कहा कि आई एम मोर कंफर्टेबल इन लर्निंग थ्रू माय हिंदी लैंग्वेज बिकॉज वो ज़्यादा समझ में आता है। तो मुझे लगता है कि कितना ही अमेजिंग सिचुएशन होगी जब मुझे हिंदी में भी उतना ही समझ में आने लगे जितना इंग्लिश में आने लगे। तो मेरी रेंज जो है स्टडी की या नॉलेज को एक्वायर करने की बहुत बढ़ जाएगी। सो मुझे लगता है कि ये दोनों डिज़ायरेबल है। सो वेल आई थिंक द पॉइंट इज, आई होप द पॉइंट इज टेकन दैट अगर हम क्रिया करेंगे और अगर हम सही दिशा में काम करेंगे तो हमको इसका रिजल्ट मिलेगा। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री नाउ कि अगर हम कुछ करेंगे तो हमें इसका फल मिलेगा? अगर Yes, हम sir. I definitely agree with that. Yes, sir. ओके, दैट्स Because ग्रेट। if we do anything, that will give reaction also. यस यस। सो चलिए फिर अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मेरा सेशन का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि हमारा क्या रूटीन होना चाहिए जिससे कि हम इस इंग्लिश को अपनी भाषा में, आई बिलीव आई हैव सम मोर टाइम विथ मी। कैन एनीबडी टेल मी हाउ मच टाइम आई हैव टू कंक्लूड माय सेशन? मे आई हैव अनदर 15 मिनट्स? Yes, sir, you can. ओके ओके, ग्रेट। सो चलिए देखते हैं कि क्या रूटीन है और क्या अगर आज से हम करेंगे तो हमें इसका मतलब रिजल्ट तो पक्का मिलेगा। उससे पहले, आगे जाने के पहले, क्या करना है बताने के पहले, या आज से आपका रूटीन क्या होना चाहिए विथ रिगार्ड्स टू इंग्लिश, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ कि हम कहते हैं ना कि इसकी भाषा बहुत अच्छी है, तो वो अच्छी भाषा का क्या डेफिनेशन है? उसकी भाषा अच्छी है तो उसमें अच्छा क्या रहता है? Why do we call someone's language is very good? What are the attributes or characteristics of good language? So Anybody? fluency, understanding in the vocab. Very good. So fluency, when very important point. Okay, fluency होना चाहिए। और क्या होना चाहिए जिससे हम कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छा बोलता है या So the उसकी भाषा बहुत communication, अच्छी the है? understanding, other one can be easily understandable that language. हाँ, तो that agree Surpali, that is something called coherence, that जो मैं कहना चाहता हूँ सामने वाले को भी वही समझ में आना चाहिए। I completely agree. Anybody else who would like to say? The particular manner of saying words. Pardon me, I didn't get you. Ankit? The manner of saying words properly and Manner क्या मतलब pronunciation की बात कर रहे हैं क्या आप अंकित? yes sir, pronunciation as well as मतलब whom we are talking, as I am talking to you, to what pitch I should Okay. go for it. ओके, सो मैनर, या मैं उसको शायद मैं समझ नहीं पा रहा हूँ जिस तरह से भाषा को बोलना चाहिए वो आना चाहिए। और मे बी शायद प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा उच्चारण अच्छा है तो अपने आप ही हम एक इम्प्रेशन बनाते हैं कि हमारी भाषा अच्छी है। ओके, तो फ्लुएंसी sir, इज वेरी इम्पोर्टेंट। हाँ, And so most vital thing is like we need confidence. ओके, कॉन्फिडेंट। लेकिन कॉन्फिडेंस कैसा है? कॉन्फिडेंस के साथ ऐसा है, देखिए, वी कैनॉट बी कॉन्फिडेंट इन जनरल। हम जिस चीज़ में अच्छे होते हैं हम उसमें कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। अगर आज मेरे से आप कहेंगे कि मैं मैथ्स पढ़ाऊँ तो शायद आई विल नॉट बी कॉन्फिडेंट ऑफ टीचिंग मैथ्स टू यू। ओके, सो कॉन्फिडेंस इज डेफिनेटली एक जनरल हमारा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, और फिर हम अलग अलग स्किल्स में कॉन्फिडेंट होते हैं। सो यस, कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अच्छी इंग्लिश, मेरे हिसाब से जो डेफिनेशन है कि एक व्यक्ति जो फ्लुएंट है, बिना रुके अपनी बात को कह सकता है। ओके, उसे सोचना नहीं पड़ता है। और दूसरा, जिसकी वोकैबलरी रिच है, मतलब इंग्लिश एक बड़ी रिच भाषा है, तो हर चीज़ के लिए आपके पास एक वर्ड है, हर सिचुएशन के लिए एक वर्ड है। तो अगर आपके पास सही वर्ड है, सही एक्सप्रेशन है, तो आपकी भाषा अपने आप ही इम्प्रेसिव हो जाती है। तीसरा, उस अच्छी इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप शायद मुझे नहीं बता रहे हैं कि अच्छी भाषा की कैरेक्टरिस्टिक्स में वो क्या है। एक तो हो गया कॉन्फिडेंस, फ्लुएंसी, वोकैबलरी, pronunciation. One more thing which I feel is very important. Anybody who can tell me? So the knowledge about language and the way of talking and such as the manner of talking and the expressing yourself.
Okay, so expressions and manner definitely are very important, Rupali, I agree, है ना? But I think correctness of language is very important. हमारी भाषा सही होनी चाहिए, है ना? ग्रामेटिकली अगर हम गलत इंग्लिश बोलेंगे तो हम कभी भी पॉजिटिव इंप्रेशन नहीं डाल पाएंगे. अगर हमारी इंग्लिश में या अगर हम हिंदी भी कह रहे हैं और अगर हमारी हिंदी में बहुत सारी गलतियां हैं तो जो जो हम प्रभाव डालना चाहते हैं शायद वो प्रभाव नहीं डाल पाते हैं. तो वह हमें ये हेलो यस somebody wants to say something. Okay, so हमें हमें ये प्रभाव हमारा अच्छा हो इंग्लिश में तो उसके लिए हमारी भाषा सही होनी चाहिए, हमारी वोकैबलरी रिच होनी चाहिए, हमारा प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए और हम फ्लुएंट होने चाहिए जो कि कॉन्फिडेंस के साथ साथ चलता है. ओके, सो अब मैं आपको बताता हूँ कि आज से आपको क्या करना चाहिए जिससे आपकी भाषा में अपने आप एक ग्रेजुअल चेंज आना शुरू हो जाएगा. चाहे आप शायद कोई सेशन अटेंड करें या ना करें, बट इट विल डेफिनेटली हेल्प यू. ओके, सो फर्स्ट थिंग है जो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ और जो इसको रेगुलरली करते हैं दे बेनिफिट अ लॉट. सो वो है कि हमें कम से कम 10 से 15 मिनट्स लाउड रीडिंग करना चाहिए. लाउड रीडिंग का मतलब होता है कि हमें रोज़ कोई भी न्यूज़पेपर ले लीजिए. ज़रूरी नहीं कि आप किसी नए रोज़ के फ्रेश न्यूज़पेपर लें, आप कहीं से भी पुराने न्यूज़पेपर ले आइए. और न्यूज़पेपर मैं इसलिए एडवाइस करता हूँ क्योंकि न्यूज़पेपर की जो भाषा है वो हमेशा करंट होती है. करंट लैंग्वेज जो भी वर्तमान में चल रही है समाज में वही भाषा न्यूज़पेपर में होती है. बिकॉज अगर आप देखेंगे इंग्लिश जो कि 50 साल पहले या 100 साल पहले वो बहुत डिफरेंट थी, जो आज की भाषा है वो बहुत डिफरेंट है. उसमें नए नए वर्ड्स और एक्सप्रेशंस जुड़ते जाते हैं. तो करंट लैंग्वेज यू वुड गेट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर and you should take a newspaper and do at least 10 to 15 minutes of loud reading. 10 to 15 minutes of loud reading will give you a lot of benefit. सबसे पहला कि जैसे ही आप लाउड रीडिंग करते हैं आपकी भाषा के साथ एक पहचान बननी शुरू होती है. आप उससे फेमिलियर होना शुरू हो जाते हैं. आपको समझ में आता है कि आप जो कह रहे हैं और जब हम कुछ कहते हैं तो हम अपनी बात को सुनते भी हैं. सो इतने सारे हमारे सेंसेस उसमें इन्वॉल्व होते हैं. तो जो मैं आपसे शिकायत कर रहा था ना कि आप इंग्लिश को अवॉइड करते हैं एंड आप उसके साथ टाइम नहीं बिताते हैं, तो ये सबसे पहले ये चीज़ आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएगी कि आप भाषा के साथ टाइम बिताना शुरू कर देंगे. ओके, एंड यू विल बिकम फेमिलियर विद द लैंग्वेज, यू विल बिकम फ्रेंडली विद द लैंग्वेज, और रादर लैंग्वेज विल स्टार्ट बिकमिंग फ्रेंडलियर टू यू. सो लाउड रीडिंग से उससे हमारा प्रोनाउंसिएशन भी इम्प्रूव होता है. और आजकल तो हमारे पास सारी okay, so yes sir, I got it. I have, that means 5 to 7 minutes. So let me conclude it, and I can maybe give some tips maybe in the subsequent sessions if I need be. Okay, so I think another 5 minutes I have. So let me just finish that. To start doing loud reading, you'll have a lot of benefits of doing that. प्लस जैसा कि कहा कि वोकैबुलरी सीखने के लिए आपको क्या करना चाहिए, रोज आप एक नियम बना लीजिए कि मुझे 1 या 2 नए शब्द अपनी भाषा में जोड़ने. उसको आप जब भी लाउड रीडिंग करें तो आपको नए नए शब्द मिलेंगे, उसमें से आप कुछ उसको अंडरलाइन कर लीजिए और अंडरलाइन करने के बाद एक रजिस्टर में लिखिए, और जिस सेंटेंस में वो वर्ड लिखा है मिला है आपको वो भी लिखिए, क्योंकि हमें पता भी होना चाहिए कि उसका यूज़ कैसे करना है. फिर एक अच्छी डिक्शनरी में उस वर्ड को ढूंढिए, और डिक्शनरी में ढूंढिए प्लीज़. मोबाइल ऐप में जाते हैं या तो अंदर ऐप में जाइए, सिर्फ गूगल के पहले मीनिंग में मत जाइए, क्योंकि इंग्लिश में एक वर्ड से मल्टीपल मीनिंग होते हैं. उसके बाद जब आपको वो वर्ड आपने देख लिया, उसका मीनिंग देख लिया, तो सिमिलर 2-3 सेंटेंसेस बनाइए. और ये मुझे लगता है कि आपको एक डेडिकेटेड एक रजिस्टर बनाना चाहिए जिसमें डेट वाइज करना चाहिए. मैं खुद जब मैं कॉलेज में था तो मैं करता था. फिर आप उस वर्ड के 2-3 सेंटेंसेस बनाइए, फिर आप उसको कैपिटल में लिखिए जिससे कि आपको उसकी स्पेलिंग याद हो जाए. फिर आप उस वर्ड को प्रोनाउंस कीजिए 15-20 बार, और लास्ट में आपको उस वर्ड को दिन भर अपने फ्रेंड्स के साथ, कोलीग्स के साथ यूज़ करना चाहिए. उस वर्ड को लेके निकलिए और जो मिले सामने उसके ऊपर वो वर्ड का प्रयोग कीजिए. इफ़ यू डू इट सिस्टमैटिकली, 1 day 1 word or 1 day 2 words, that's good enough. अगर आपने 30 दिन कर लिया तो you can imagine you're adding at least 25 to 30 new words to your vocabulary, which is a huge improvement.
कहाँ हम कोई भी एक वर्ड नहीं ऐड कर रहे हैं और हम 20 से 25 वर्ड रोज ऐड कर रहे हैं। और उसके बाद फिर हर 5-6 दिन 7 दिन के बाद फिर से रिविजिट कीजिए इन वर्ड्स को। अब आपके लिए आसान इसलिए होगा क्योंकि आपने सिस्टमैटिकली डेट वाइज इन वर्ड्स को सीखा है। देन यू कैन गो बैक टू दीज वर्ड्स, एक बार उसको फिर से रिविजिट कीजिए, फिर से उसको रिपीट कीजिए, कोशिश कीजिए यूज़ करने का। ऐसे आगे बढ़ते जाइए। एक स्टेज आएगा कि हम जो 30 वर्ड सीखते हैं महीने में, हो सकता है उसमें से 10 वर्ड हम भूल जाएं, लेकिन हम 20 वर्ड्स जरूर अपनी लैंग्वेज में ऐड कर पाएंगे। So this is my next routine to you, that today onwards you should make a vow that you are going to add one new word a day in your vocabulary. If you do just one new word a day in your vocabulary, you can see in 2-3 months time your vocabulary will become very rich. What you can do is, आप जो आपके प्रोफेशन से जो नए शब्द हैं उनमें से एक वर्ड ले लीजिए, so that आपकी प्रोफेशनल vocabulary या जिसको हम jargon कहते हैं वो improve होना शुरू हो जाएगा। So I think, and third thing is, my last advice to you all who want to learn good English is to listen to good English consciously. 10-15 मिनट्स किसी भी न्यूज़ चैनल को लगाइए और कॉन्शियसली उसको सुनिए। कॉन्शियसली मतलब उसके विषय पे मत उलझिए। कीप योर फोकस ऑन द लैंग्वेज, कि कोई कैसे सवाल कर रहा है, उसका जवाब कैसे दे रहा है, फॉर्मेशन क्या है। अगर आपने कॉन्शियसली किया, हम पिक्चर वगैरह देखते हैं लेकिन उसमें हमारी लैंग्वेज बहुत इंप्रूव नहीं होती, लेकिन अगर आप कॉन्शियसली 10-15 मिनट्स इसको करते हैं, देन यू विल स्टार्ट सीइंग अ डिफरेंस कमिंग इन यू। और ये सब चीज़ों को करने में मुश्किल से आपको दिन में 45 मिनट्स एक्स्ट्रा देना होगा लैंग्वेज को, लेकिन ये इतना रिवॉर्डिंग है दैट यू विल स्टार्ट सीइंग अ चेंज कमिंग इन योर लैंग्वेज। So with that, I am going to conclude here, because there is a test which we have planned for you, or which is going to start in another 2-3 minutes. So we'll continue to meet you. It was nice talking to you. Thank you very much. Now I will hand over it to the organizer for whatever method they want to conduct the course, and carry the session onward. Thank you. It was nice talking to you all. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. It's a great pleasure to talk to you. Thanks. Learn something new from you. Thank you. So we shall continue then. Okay, sir. Tomorrow onwards. Okay, bye. Okay, sir. एग्जाम चालू होने वाला है 11 से, तो सभी लिंक अभी इसमें चैट बॉक्स में भी दिया गया है और व्हाट्सएप लिंक में भी दिया गया है। हेलो, स्टूडेंट सुन पा रहे हैं मेरी बात? यस तो अभी आप लोग एग्जाम भी देना है आपको, और व्हाट्सएप लिंक में भी दिया गया है और ये इसमें चैट बॉक्स में भी दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आप एग्जाम दे दीजिए। आपको भी देना, आप नहीं दे पाएंगे।